welcome to all of you. Good afternoon, sir. ये इधर ही है recording. We have Dr. Ashish Arora amongst us, who is the guest speaker of the day. A very hearty welcome to you, sir. Dr. Ashish Arora needs no introduction. He is always kind enough to come amongst us and guide you all with his invaluable insights, with his experience, his leadership abilities. He always guides us towards the goal of success. To list some of his achievements, he is the head of the department, University Business School, GNDU College, Jalandhar. He has numerous research papers to his credit. He is a gold medalist in MBA, in finance, doctorate in his course of course, and one distinction which he holds is that he is the flag bearer of entrepreneurship, innovation, inspiration, I would say, in this part of the region. So I welcome him aboard once again in this series of lectures, and I hope it will be an inspirational and motivational session. I would like to place on record my thanks to Dr. Rajesh Kumar, principal of the college, who is always generous enough in helping us to organize such events. I would like a special mention to Dr. Ajit Puri, who is the convener of our IAC Institution Innovation Council, Dr. Nishchay Bahal, Head Department of Computer Science, who is always eager enough to be with us and also give his insights into his experience and all. So, without taking much of the time, I would like to invite Dr. Ashish Arora on the stage, and I would like to invite Dr. Ajit Puri and Dr. Nishchay Bahal to kindly welcome our guest. अच्छा ऐसे सुंदर है या Thank you so much for welcoming our guest. So, आज का जो session है, one thing I must assure you that it is going to be very interesting, because I have privileged enough कि मैं सर के जितनी भी talks हुई हैं यहाँ भी और कहीं और भी, तो I was a part of it, and उससे कुछ ना कुछ हम लेके ही जाते हैं. आप लोगों के लिए मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि कई बार बंदा ना, आज मैं क्लास में कर रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम, आई वाज टीचिंग, तो एक विंडो का मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था, व्हाट इज ए विंडो, राइट? तो मोस्ट ऑफ यू, रादर सम ऑफ यू वर एबल टू आंसर इट, बट कईयों को ये नहीं पता होता कि विंडो तो हम आज अभी भी मैं कह रहा था कि अपनी दिमाग की खिड़की खोल दो, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वही कंसेप्ट है. तो सर अगर आए हैं ना अपना टाइम निकाल के, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इससे कुछ आप सीखो. आज की डेट में हम लोग यहाँ जो बैठे हैं करियर बनाने के लिए, तो इधर वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब, बट द बज़वर्ड टुडे इज एंटरप्रेन्योरशिप. रादर देन बीइंग जॉब सीकर, यू बेटर बी ए जॉब क्रिएटर. जब आपके अपने अंदर इतना स्किल आ जाएगा कि आपको कुछ पता लग जाए बिजनेस क्या होता है और कैसे करते हैं, और जो हमारा आज की डेट में हर यूथ जनरेशन, वी वांट इजी मनी, वी वांट फेम, वी वांट रिकॉग्निशन, यही है ना हमारा गोल. बट वो ऐसे ही नहीं मिल जाता. यू हैव टू हैव डीप नॉलेज, डीप इनसाइट कि उसके लिए करना क्या है. और डॉक्टर आशीष ने आज अपनी टॉक आई होप इसी पे बेस की है. हर किसी को लगता है मेरे पास ये है, मैं ये करने वाला हूँ, बट क्या वो फिट है? हम अपने दोस्तों के साथ आइडिया शेयर करते हैं, रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो हमें इनकरेज नहीं करते. बट डॉक्टर आशीष आई होप विल guide you
कि हमें कैसे सोचना चाहिए और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। विद दीज फ्यू वर्ड्स आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर स्पीकर ऑफ द डे, रिस्पेक्टेड डॉक्टर आशीष अरोड़ा, प्लीज। Thank you, sir. Okay, so am I audible at the back? Yes, sir. सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Good afternoon, everybody, and thank you once again to Nishchay sir and Rajiv Puri sir and Vishal sir for inviting me over here and giving me a chance to interact with you people. एक चीज़ आपको हमेशा जो है ना वो अप्रिशिएट करनी चाहिए, एंड दैट इज़ दैट जो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप पढ़ रहे हो ये कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में लेके चला करो। ये जो कॉलेज है इसकी लेगेसी जो है वो बहुत पुरानी है। मे बी आप में से काफ़ी होंगे जिनके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, सुपर ग्रैंड पेरेंट और मे बी उनसे भी बड़े ग्रेट ग्रैंड पेरेंट भी यहीं से पढ़े होंगे। है कोई ऐसा जिसके ग्रैंड पेरेंट यहाँ पढ़े, पेरेंट्स पढ़े, कि कभी बात ही नहीं हुई? बात पूछ के देखना, ठीक है? मे बी यू विल बी सरप्राइज्ड कि हो सकता है पक्का कि आपके जो है वो कोई ना कोई फैमिली में से कोई ना कोई माइट हैव स्टडीड इन दिस पर्टिकुलर एग्जैक्टली सर। सो द पॉइंट इज सर कईयों के पेरेंट्स को यहाँ एडमिशन नहीं मिली उस टाइम पे, ये भी है, यस। तो वो द्वापा कॉलेज चले गए, जब इसीलिए द्वापा कॉलेज खुला था। एग्जैक्टली। सो बेसिकली जो है वो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं और क्यों हैं वहाँ पे। ये नहीं होना चाहिए कि रोज़ सुबह जैसे मुंह धोया, चलो बाल कंघी किए, कपड़े पहने और कॉलेज आ गए बिना ये सोचे समझे कि हमारा लाइफ में गोल क्या है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि गोल जो है ना लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। यस, ये है कि नहीं? तो आपका गोल है तो पहले आप आगे आ जाओ क्योंकि आपका गोल है। प्लीज कम आजा आगे आ जा। देखो सिंपल सी बात है, मैं तो इस चीज में बिलीव करता हूँ, मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि जो भी यहाँ पे बैठा है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के साथ यहाँ पे बैठा है। हम आपसे सिर्फ आपकी लाइफ का ये जो 1 घंटा है, हम सिर्फ आपसे ये चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और कुछ नहीं डिमांड कर रहे हैं। सारा कुछ छोड़ के बंद करके साइड पे मोबाइल फोन, दिमाग में जो भी को और थॉट आ रहे हैं वो सारे साइड पे रख के सिर्फ 1 घंटा मुझे लाइफ का आप दे दो। आई एश्योर यू, आई गारंटी यू, मे बी मतलब पूरा तो नहीं कमिट करता बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि यू विल लर्न समथिंग। एंड सेकेंडली जो अभी आप लर्न करोगे, अगर आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को लाइफ में कहीं भी इम्प्लीमेंट करोगे तो उससे आपको फ़ायदा भी होगा। आप लोग लकी हो कि अब जो है वो कॉलेजेस में इनवाइट किए जाते हैं टीचर्स, दूसरे कॉलेजेस से रिसोर्स पर्सन इनवाइट किए जाते हैं, इंडस्ट्री के बंदे यहाँ पे आते हैं और वो आपको आगे बातें बताते हैं। तुम्हें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम लोग जो है वो हमारे में कोई स्किल है या हम कुछ जो बात बता रहे हैं बड़ी रेलेवेंट है, ऐसा वो तो है ही है। उसके अलावा ये भी एक चीज़ है कि आपके जो टीचर है वो अपने क्लासेस छोड़ के अपनी जो करिकुलम है उसके अलावा आपको बातें बता रहे हैं जिससे आपको फायदा होगा। जब हम लोग कॉलेज में होते थे ना, विशाल सर, मैं, पुरी सर, हम तीनों एक ही एज ग्रुप के हैं ऑलमोस्ट। जब हम लोग कॉलेजेस में होते थे तो हमारे जो गेस्ट लेक्चर है वो इसी चीज़ के होते थे कि नौकरी कैसे लेनी है। आज भी एक बहुत बड़ा इशू है, नौकरी लेना आज भी एक बहुत बड़ा इशू है। आज भी बच्चे जो है वो इतने स्किलफुल नहीं हुए हैं। उसमें डेफिशिएंसी किस चीज़ की है, बहुत सारा, ये बहुत डिबेटेबल एक वो है पॉइंट, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। बट सबसे पहले जो हमें एक चीज़ को समझना चाहिए वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या बेसिकली, और हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं। क्या हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे अगर 70 बच्चा बैठा है 70 का 70 जो है एंटरप्रेन्योर बन जाए? तो आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। जैसे कोई भी और स्किल है, मोस्टली आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हो, yes, sir. तो पाइथन आपको पता है, जावा आपको पता है, ये लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब हम लोग थे तब सी होती थी, और पीछे चले जाए तो और भी पुरानी लैंग्वेजेस होती थी, कोबोल वगैरह, ठीक है ना। तो वो चेंजेस होती रहती हैं।
बट मैटर ये नहीं करता कि आपको लैंग्वेजेस कौन सी आती है, मैटर ये करता है कि आप किसी भी लैंग्वेज को यूज कैसे करते हो. द यूसेज ऑफ द लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग दैट लैंग्वेज. सिर्फ क्लास में पढ़ लेने से वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती. जब तक आप उसमें कोई प्रोग्राम नहीं बनाओगे, प्रोग्राम को चलाओगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या क्या कर सकती है, क्या क्या नहीं कर सकती. उसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी एक लेक्चर में समझ में नहीं आएगी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आइडिया कैसे डेवलप करते हैं, आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, आइडिया सोचना कैसे है, कस्टमर की नीड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कस्टमर को क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना. ये सारा कुछ जो है ये आपको एक लेक्चर में नहीं आएगा, ठीक है ना. और ये भी जरूरी नहीं है कि जो है वो आप इन सारी चीजों को सीख के भी कोई आइडिया लॉन्च करो, ये भी कोई जरूरी नहीं है. तो फिर ये लेक्चर क्यों जरूरी है? क्वेश्चन आता है ना ये कि अब अगर हमने इसको यूज ही नहीं करना तो फिर हमारे को जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि ये एक स्किल है. एंटरप्रेन्योरशिप एक स्किल है. नॉलेज और स्किल में क्या फर्क है? नॉलेज वो है इंफॉर्मेशन, पहले ये डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड स्किल, ये 4 लेवल होते हैं, ठीक है ना. डेटा वो है जो क्या, अगर हम प्रैक्टिकली या उसकी टेक्निकली बात करें तो डेटा जो है इट इज अ नॉन रैंडम एरे. एरे समझते हो ना, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हो. नॉन रैंडम एरे ऑफ नंबर, सिंबल्स, अल्फाबेट्स, एनीथिंग. नॉन रैंडम, इट हैज टू बी नॉन रैंडम, राइट. सेकंड थिंग इज इंफॉर्मेशन. प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज इंफॉर्मेशन. फिर नॉलेज क्या चीज है? वट एवर यू आर लिसनिंग और वेयर यू आर एक्वायरिंग दैट इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज नॉलेज. और जो हमारे पास स्टोर करके भी रहे. बट इज द नॉलेज यूजफुल? आंसर इज नो. देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज स्किल. द एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब एंटरप्रेन्योरशिप में तुम बड़ा कुछ सीखोगे. बहुत सारे यहाँ पे स्पीकर्स आए होंगे, आएंगे आगे भी टाइम में, तो आपसे टीचर्स भी डिस्कस करेंगे, वो आपको बड़ा कुछ आगे सिखाएंगे. पर जब वो चीजें सीख के जब तक आप उनमें से एक भी चीज अप्लाई कर लो, एक भी चीज, दैट इज व्हाट बेसिकली स्किल. और जब तक अगर आप उसको एज अ स्किल कन्वर्ट नहीं करोगे ना, किसी भी चीज में, जावा हो गया, चाहे पाइथन हो गया, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, कुछ भी हो गया, तब तक वो जीरो है, उसका कोई मतलब नहीं है. फिर आप कह लो 16 साल की स्टडीज, 15-16 जितने भी साल की स्टडीज है, वो सारी की सारी आपकी वेस्ट है, क्योंकि आपको स्किल नहीं है. हम लोग आई बेसिकली डू अ लॉट ऑफ रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी आल्सो, and I guide my students for recruitment because I'm involved with Guru Nanak University regional campus and main campus for recruitments. तो हमारी सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट होती है. अब आजकल क्या है, कंपनीज जो है ना वो रिक्रूटमेंट ऐसे नहीं कर रही, एक्सपीरियंस वो भी नहीं. रिक्रूटमेंट के लिए आज ही मैं डिस्कस कर रहा था, अभी हमारे पास फ्लिपकार्ट आई लास्ट ईयर, 25 lakhs का पैकेज था. तो उसमें पैकेज में तो चलो जो है वो तो है, ऑब्वियसली 25 lakhs इज अ बिग अमाउंट, isn't it? बट उनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या था, तुम भूल जाओगे. अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसे होगा कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जीडी होगी, इंटरव्यू होगा. इस साल हमारे पास अभी तक 5 कंपनियां आई हैं, 5 में से 2 ने जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बिजनेस प्लान कंपटीशन डाल दी है, केस स्टडी एनालिसिस डाल दी है. अब जिस बच्चे ने बिजनेस प्लान कभी बनाया ही नहीं जिंदगी में, जिसने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया उसमें, या जिसने कभी केस स्टडी एनालिसिस ही नहीं किया, कोई सिचुएशन एनालिसिस नहीं किया, कैसे करोगे? तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता. ऐसा तो है नहीं ना कि आप रात को मुंह धोया, सवेरे उठ के जाके बिजनेस प्लान कंपटीशन में बैठ गए, जब पता ही नहीं है बिजनेस प्लान है क्या, जब आपको यही नहीं पता केस स्टडी एनालिसिस क्या होता है. केस स्टडी क्या होती है फॉर दैट मैटर, कम से कम 10-15 केस स्टडीज पढ़ोगे, उनको अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे उन चीज़ों को, फिर इंटरव्यू में जाके बैठोगे, तभी आप जाके वहाँ पे कुछ बोल सकते हो. जो प्लेसमेंट है ना अल्टीमेटली, या इवन एंटरप्रेन्योरशिप फॉर दैट मैटर, दोनों चीजें, मैं दोनों में डिफरेंशिएट नहीं समझता कोई भी. मुझे कई लोग बड़े कहते हैं कि जी आप क्या करते क्या हो, एक तरफ आप कहते हैं जी प्लेसमेंट और दूसरी तरफ आप कहते हो एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों का आपस में लिंकेज नहीं है. प्लेसमेंट किसी और के लिए काम करना, एंटरप्रेन्योरशिप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना, तो दोनों में क्या कहते हैं, समानता क्या है? ये तो दोनों डिफरेंट हो गए, ये तो अलग अलग रास्ते हो गए कि एक दिल्ली जाना है तो वाया अंबाला जा रहे हो, और एक जा रहे हो दिल्ली वाया बठिंडा, अलग अलग रास्ता है. पर क्वेश्चन तो ये है कि आप जा कहाँ रहे हो, अल्टीमेटली तो आप दिल्ली जा रहे हो. तो दिल्ली जाने का मतलब क्या है? दिल्ली जाने का मतलब है दैट यू आर हैविंग अ कॉमन गोल. एंड व्हाट इज दैट गोल? द गोल इज अल्टीमेटली टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ.
व्हाट इज सक्सेस? सक्सेस इज व्हाट एवर यू वांटेड टू अचीव। जो आपने गोल फिक्स किया था आपने वो अचीव कर लिया। हो सकता है कि मेरा सक्सेस यही हो कि मेरी ये 10 बाय 10 की कार्ट हो सकता है किसी के लिए ये गोल हो ही ना होगा। ये क्या बकवासा हुआ? 10 बाय 10 की अगर कार्ड खोल भी ली कोई सक्सेस थोड़ी है। बट यू आस्क दैट पर्सन हु इज रनिंग हिज फैमिली विद दैट 10 बाय 10 कार्ड दैट यस ही इज सक्सेसफुल। और मुकेश अंबानी हो सकता है यही सोचता हो कि मेरे तो तीनों बच्चे नालायक निकले, इन्होंने तो किया ही जिंदगी में कुछ नहीं है, जबकि उनकी वेल्थ मिला के टोटल हो सकता है कई कंट्रीज की वेल्थ के बराबर हो। तो सक्सेस का कोई ऐसे फिक्स पैरामीटर नहीं है। हाँ, सक्सेस जो है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप किस चीज को मान के चलते हो कि ये सक्सेस है और किसको मान के चलते हो सक्सेस नहीं है। अब फर्क क्या है प्लेसमेंट में और एंटरप्रेन्योरशिप में? एक सिंपल सा फर्क है। सिंपल सा फर्क क्या है? ओनरशिप का। ओनरशिप किस चीज की? किसी भी काम को करने की। प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है? प्रॉब्लम हमारे माइंडसेट में है। क्या कहाँ पे डिफरेंस है? डिफरेंस इस तरीके से, जो प्लेसमेंट है, हम कंपनियों में जॉब के लिए जाते हैं, वो कहता है जी मेरी तो जॉब जो है ना 9 से 5 है जी। 5 बजे डब्बा उठाया, पीसी बंद किया, घर चले गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे वर्किंग आवर्स 9 to 5 है। किस दिन एक्सटेंडेड थोड़ा सा काम मिल गया तो हमने वो कर लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं किया, ऐसे ही घर चले गए। और पहली तारीख जो है वो डिफाइन करती है, डिस्टिंग्विश करती है बिटवीन एन ओनर एंड एम्प्लॉय। पहली तारीख को क्या होता है? एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है। और पहली तारीख को ओनर क्या सोच रहा होता है कि मीटर घूम गया बिजली का और अब बिजली का बिल आने वाला है और मैंने पेमेंट कर दी। तो डिफरेंस किस चीज का है? ओनरशिप का। आप उस चीज को ओन करते हो कि नहीं करते हो? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी हमें जाते सार अच्छा सा पैकेज दे दे, अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स दे दे, बोनस दे दे, ऑफिस दे दे, पर हम ये नहीं सोचते कि जो फैसिलिटीज हमें दी जा रही हैं वो किसी और के लिए ये कॉस्ट है, उसने उसके एक्सपेंसेस बियर करने हैं। जिस दिन आप उसको सोचना शुरू कर दोगे ना कि लेट से ये लाइट जल रही है और ये इसका कोई फायदा नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसके बिना भी मेरा काम अच्छा चल रहा है। एम्प्लॉय सोचता है 4 लाइटें और जगा लो, फिर क्यों है, मेरी थोड़ी जेब चो जाना है, बिजली का खर्चा ही है, कंपनी देगी। जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर दो कि ये 4 लाइटों में से सिर्फ 2 लाइटों की जरूरत है, हम 2 ही जला रहे हैं, दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, द माइंडसेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इज दैट क्लियर? फिर कभी बात करेंगे इसके बारे में, ये बड़ी डीप फिलोसफी है। अगर आप ये फिलोसफी एक्वायर कर लेते हो टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, टू बिकम एन ओनर, even then your placement will be good, I'm telling you. So mindset of an entrepreneur will help you in getting good placements also, not only to become entrepreneur but in getting good placements also. मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ? मैं कुछ बेसिक सी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो इनोवेशन क्या चीज है? कोई भी नई प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करना, डिजाइन करना, क्रिएट करना, हम उसको इनोवेशन कहते हैं। यस और नो? देन देयर इज अनदर वर्ड, इन्वेंशन। तो इन्वेंशन और इनोवेशन में क्या फर्क है? फिर एक और वर्ड होता है डिस्कवरी, उसके में इन्वेंशन, डिस्कवरी, इनोवेशन, बहुत लंबी लिस्ट है। हम तीनों को 2 को डिस्कस कर लेते हैं, 3 को कर लेते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है इन्वेंशन और इनोवेशन में? लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, क्योंकि ये बेसिक्स है, हम इसमें जल्दी जल्दी निकलना चाहते हैं। हम असली पॉइंट में आएंगे, जो हमारा पॉइंट है ये वैल्यू प्रपोजिशन वाला। ओके, सो इनोवेशन क्या चीज है? अगर आपने या प्लीज क्रिएट मतलब कोई प्रोडक्ट क्रिएट करा है तो इनोवेशन, जो इन्वेंशन है मतलब उसमें हमने कुछ ऐड किया है, हमने मतलब इन्वेंशन क्या है फिर? मतलब सर वही मतलब इन्वेंशन हमने कोई न्यू प्रोडक्ट कोई बनाया और इनोवेशन? और इनोवेशन उसको हमने कुछ ऐड किया है, कोई मतलब प्रोग्राम उसमें इन्वेंशन में भी किया हो तो जैसे गुरिल्ला ग्लास है, लेट से मैं गुरिल्ला ग्लास की एग्जांपल देता हूँ। तो गुरिल्ला ग्लास क्या है? इन्वेंशन है, इनोवेशन है? How many of you say invention? Raise your hands. इनोवेशन। And नहीं, how many of you say it is an innovation? चलो यही बता दो। हाँ जी प्लीज आप बोलिए। सर इनोवेशन में ये होता है कि लाइक कोई एग्जिस्टिंग फंड है, उसमें ऐड ऑन चीजें डाली गई है ताकि उसको यूनिक बना दे एग्जिस्टिंग फंड से, उसमें इनोवेशन काइंड ऑफ इनोवेशन। गोरिल्ला ग्लास तो एक उसका वो कवर है ना, ग्लास का कवर है, क्या हुआ उससे? प्रोटेक्ट कर सके। इट वाज बेटर देन द एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस। यस सर। चलो मैं बताता हूँ सीधे, क्योंकि हम इस पे ज्यादा एक्चुअली डिटेल में जा नहीं सकते, है ना, टॉपिक भी कवर करना है। वैसे ये तुम्हारे लिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन चीजों को अंडरस्टैंड करना। मैंने लैब में बैठ के ना एक ऐप बना ली। ऐप किस चीज की बनाई? स्टूडेंट्स बड़े हमारे आते हैं, वो कहते हैं जी
जब हम बाहर से आते हैं ना तो हमारे को पीजी नहीं मिलता जलंधर में, क्योंकि कोई ऐसी ऐप नहीं है जो पीजी पूजी की सर्विसेज देती हो। ठीक है, तो अगर कोई ऐप ऐसी मिल जाए कि जहाँ पे जस्ट डाला कि हाँ मेरे को इस एरिया में पीजी चाहिए, तो मैं आई शुड बी एबल टू सर्च इट एंड आई शुड बी एबल टू कॉन्टैक्ट इट, इवन कॉल, उसकी फोटोग्राफ्स वगैरह डाल दो, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज हैं, उसका रेंटल क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को एक ही उस पर मिल जाए। ये क्या है? इट्स एन इन्वेंशन। It's an invention. Why it is an invention? Because it is creating something new. New. But that is not innovation. But that is not. Now you are shocked. कि how it is an invention but not an innovation. It will become innovation the moment it will start making money for you. पैसा कैसे आएगा इस ऐप में? कहाँ से आएगा पैसा? आप पैसा कैसे कमाओगे? सब्सक्रिप्शन होगा, वेरी गुड। देयर सो मेनी मेथड्स आर देयर। ऐड हो सकती है, सब्सक्रिप्शन हो सकती है, जिसको आप जो पीजी वाला है उससे आप पैसे चार्ज कर सकते हो, स्टूडेंट से कर सकते हो। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज आर देयर। जब आप उसमें से पैसा कमाओगे ना तब वो इनोवेशन होगी। गोरिल्ला ग्लास इज एन इन्वेंशन सो लॉन्ग एज इट वाज इन्वेंटेड बाय सम चाइनीज कंपनी और मे बी आई डोंट नो हु इन्वेंटेड इट, बट उन्होंने इन्वेंट किया। अगर लैब में आप बैठ के कोई इन्वेंशन कर रहे हो तो इन्वेंशन ही है, क्योंकि तब हम मोनेटाइजेशन के बारे में नहीं सोचते, हम कमर्शलाइजेशन के बारे में नहीं सोचते। लेट्स से मैंने मार्स पे वो आजकल वो कर रहा है, वैसे टेस्ला वाला क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि मार्स पे जाना है, किसी ने तो बताओ, एंड ही इज मेकिंग ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट। सो लॉन्ग एज इट्स अ कॉन्सेप्ट, सो लॉन्ग इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन बेटर देन एग्जिस्टिंग सोल्यूशन, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है ना? सो हम करेंगे इसको डिटेल में डिस्कस ये कैसे है। तो वो इन्वेंशन ही है। जब तक उसमें से वो पैसा नहीं कमाता एंड somebody is not willing to pay for it, that is the most important thing. लेट्स से कोई स्टूडेंट आया, ऐप डाउनलोड करी, हो गया था अच्छा पीजी के लिए, जैसे इन्होंने कहा सब्सक्रिप्शन बेस हो गया था, ये हो गया मेरे को एक बार के लिए चाहिए, मैं 50 रुपये दे दूंगा, 100 रुपये दे दूंगा, मैं ये थोड़ी है मेरे को चाहिए ही नहीं। उसके बाद उसकी यूटिलिटी, उसकी वैल्यू सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है कि जब उसको पीजी चाहिए। फिर वो वहाँ पीजी पे पहुँच गया ना, जाके उसने कमरा ले लिया, फिर वो कहता है कि अब तो मेरी यूटिलिटी खत्म हो गई, फिर वो ऐप डिलीट कर देगा। आप फंस जाओगे क्योंकि आपका रेवेन्यू रुक गया। नहीं सर, जो ऐड डाल रहा है उसके लिए चलो ये ना ये भी डिस्कस कर लेते हैं। कितनी को ऐप्स है जो आप देखते हो जहाँ पे एड्स होती है? एक आपके पीसी में कितनी है, सॉरी आपके इसमें फोन में कितनी ऐप्स हैं? 100-150 होंगी। कितनी यूज कर रहे हो? उनमें कितनों में एड्स हैं? सर जो पोस्ट डाल रहा है पीजी के लिए, जो पोस्ट उससे लोगे आप, उसके बाद बंदा पहुंच गया, बच्चे पहुंच गए, ठीक है कि नहीं? उसके पास बच्चे पहुंच गए ना बेटा, उसने डाला, कितना दे देगा वो तुम्हें? देखो मतलब पॉइंट इज इट्स अ कॉम्प्लेक्स रेवेन्यू मॉडल, ये इतना आसान नहीं है। मतलब हमें जितना लगता है ओलेक्स अभी तक पैसा नहीं कमा पाई है नेगेटिव में जा रही है। देखो पता क्या है, हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन्वेंशन है। ठीक है ना? हमारे दिमाग में एक आइडिया है, हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन कर ली, और हमने वो जो है उसकी ऐप बना ली, वेब बेस्ड प्रोग्राम सोल्यूशन बना लिया, कुछ भी बना लिया। अगला क्वेश्चन ये है उसमें पैसा कैसे कमाना। जो बंदा पीसी वाला है उसको पीसी मिल गए, ठीक है? जरूरत कब होती है पीसी की? मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, साल में 2 बार। अनलेस एंड अनटिल अगर कोई छोड़ भी जाए तो वो आंटी जो है पीजी वाली आंटी या पीजी वाले अंकल जो हैं वो दोबारा ऐड नहीं डालेंगे, वो एक बार ही डालेंगे। आप उनसे कितना ले लोगे एक बार ही डालने का? इसका टाइम पीरियड होता है कि 1 महीने बाद वो ऐड इरेज हो जाएगी, ठीक है ना? उनको दोबारा डालनी पड़ेगी। कितना चार्ज कर लोगे? फिर भी मैं वही पूछ रहा हूँ, हाउ मच यू आर गोइंग टू चार्ज? आर यू गोइंग टू चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु अवेल्ड दैट सर्विस, या आर यू गोइंग टू चार्ज देम वन फ्लैट रेट कि 1000 रुपया पर ऐड? फ्लैट रेट। जलंधर में कितने पीजी होंगे जो फ्लैट रेट के ऊपर ऐड डालेंगे इन 1 ईयर? हाउ मेनी आर देयर? मतलब वी हैव टू डू ऑल दिस कैलकुलेशन। अगर हम किसी भी तरीके से किसी भी चीज का रेवेन्यू मॉडल की जब बात करते हैं ना, तो रेवेन्यू मॉडल में सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स एंड हाउ मेनी यूजर्स एंड हाउ मेनी पेड यूजर्स।
यू आर गेटिंग द पॉइंट. सो करेंगे बात इसके बारे में, ठीक है ना, आगे करते हैं. सो व्हाट इज इनोवेशन? समथिंग व्हिच इज न्यू, व्हिच हैज बीन क्रिएटेड, सम न्यू प्रोडक्ट और सर्विस which is solving, अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, which is solving some problem and the solution is something new and unique. अगर आपकी existing problem से, जो existing solution से अगर आप better कोई solution दोगे तभी वो innovation है, नहीं तो innovation नहीं है. For example, let's go for the example. PVR cinema. How many have been to PVR? Raise your hands. कौन नहीं गया रादर, है ना, ये पूछना चाहिए. Who has not been to PVR? हाँ जी बेटा. PVR, you are aware of PVR? कोई ऐसा भी है जो PVR नहीं गया अभी तक? मूवी देखने जाते हो, कहाँ जाते हो? हाँ जी, कौन कौन PVR नहीं गया? लेट्स से नहीं गए आप. क्यों नहीं गए? ऐसे ही नहीं गए, मौका नहीं लगा. सर यहाँ मैं आए शिफ्ट हुआ यहाँ पे. ओके, नहीं आप कहाँ से आए हो? बिहार से. वहाँ पे पीवीआर नहीं है आजकल, तो हर एक सिटी में है. मैं ही नहीं. ओके, यू शुड गो टू पीवीआर. ठीक है, वाई हम पीवीआर की एग्जांपल ले रहे हैं. पीवीआर की फुल फॉर्म क्या है? पीवीआर की फुल फॉर्म है प्रिया रोड शो विलेज. एक फैमिली थी जिनका साकेत दिल्ली में एक छोटा सा थिएटर था. उनको सडनली एक आइडिया आया, उन्होंने कहा जी कि एक थिएटर में नॉर्मली जो पुराने वाले थिएटर है, एक थिएटर में एक मूवी लगती है. तुम तीनों जो लास्ट में बैठे हो ना, हेलो हेलो ऑल ऑफ यू 3 स्टैंड अप प्लीज. 3 स्टैंड अप. हाँ, इनको आगे बुलाते हैं. आइए आप इधर आ जाइए, तीनों आगे आ जाओ. या बैठिए, स्पेशल सीट्स फॉर यू, वीआईपी. तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें सबके सामने बुला के यहाँ बिठाया जा रहा है. Rather than smiling, you should be feeling ashamed. Okay? Remember that. PVR में क्या वैल्यू एडिशन है, क्या बेनिफिट्स है? Have you seen movie? कौन बताना चाहेगा कि आपने? हाँ जी प्लीज. कंफर्टेबल सीट्स. कंफर्टेबल सीट्स, रिक्लाइनिंग है, वेरी गुड. और एयर कंडीशनर है, और फूड सर्विसेज है. महंगा है बट यस द फूड इज देयर. व्हाट एल्स? गुड क्वालिटी. गुड क्वालिटी ऑफ व्हाट? क्वालिटी ऑफ मूवी एंड Acoustics. और जो स्क्रीन है वो भी अच्छी है. Yes, sir. तो उसमें आपको आजकल 3D 4D की ऑप्शन भी आ गई हैं. Yes, sir. व्हाट एल्स? ये ना, अब फिर मैंने बुला लेना आगे. अब नीचे बैठना पड़ेगा. देख लो, इधर डिस्कस कर लो, हम इसीलिए हैं. प्लीज स्टैंड अप. हाँ जी, गुड गुड. इन्होंने जो बताया, आप कुछ ऐड करना चाहते हो इसमें? एनीबडी हु वांट्स टू ऐड टू व्हाटएवर ही सेड? हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी किस तरीके की हॉस्पिटैलिटी? जैसे सीट पे खाना वगैरह आ जाता है. सीट पे खाना आ जाता है. और दैट्स इट. ओके, देयर इज समबडी टू शो यू टू द सीट आल्सो. वी कॉल इट अशर, है ना. और कंफर्टेबिलिटी. कंफर्ट है, मतलब कन्वीनियंस है. convenience. पता नहीं तुम आईटी के स्टूडेंट हो, तुमने एक्चुअल कन्वीनियंस की तो बात ही नहीं करी. दैट यू कैन बुक द सीट्स बिफोर हैंड Beforehand. जस्ट बाय डाउनलोडिंग एन ऐप एंड यू कैन सेलेक्ट द सीट आल्सो. Now imagine the scenario 25-30 years back when PVR was not there. So sir, पहले तो टिकट की विंडो, वहाँ पे लंबी लाइन, और गर्ल्स की कोई सेपरेट लाइन नहीं है, पहले बता दूं. तो थक्का मुक्की पूरी जबरदस्त. ठीक है, मतलब कोई ये नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है. और टिकट विंडो कितने बजे खुलेगी? कई बार 15 मिनट पहले, कभी आधा घंटा पहले, कभी 5 मिनट पहले. फिर आपने हाथ डाला, आपको पता ही नहीं अंदर कौन बैठा है. वो इतनी सही होता था. किसने डेढ़ कितने की टिकट है? 20 रुपए की टिकट है. अभी हाथ डाला, चार टिकट दे दो, 4 टिकटें. यू आर गेटिंग टिकट्स, यू आर नॉट गेटिंग सीट नंबर. फिर आप वहाँ चले जाते हो, एक दरवाजा है, इतना ही होता था, है ना सर. लकड़ी का दरवाजा होता था, उस पे सारा ऐसे, हम क्या बोलते हैं, कन्वर्ज होके सारा ट्रैफिक वहीं पे खड़ा हो गया. आप खड़े हो वहाँ पे, और सडनली फिर वो खोलेगा, फिर आप भागते हो बिकॉज देयर इज नो सीट नंबर. अब कहाँ लोगे सीट? आगे लोगे, पीछे लोगे? व्हाई? व्यू बेटर होता है. पीछे वाली सीट से हमेशा व्यू बेटर होता है, इसलिए पीछे वाली सीट हमेशा महंगी होती हैं. देखे ना आपने,
फिर आप सीट पे जाके बैठ गए, फिर आपने ऐसे सीट रोक ली है क्योंकि दोस्त भी हैं आपके, वो पीछे रह गए, वो इधर, वो मेरी है इधर, इधर नहीं बैठना सर, कहीं पे वो रख दिया, हैंकी रख दिया, कहीं किताब रख दी, कहीं जूता ही उतार के रख दिया, फिर मूवी शुरू हो गई, देयर इज नो एसी, और फिर लाइट चली गई, जनरेटर पे सिर्फ स्क्रीन चल रही है, आप विदाउट लाइट्स बैठे हो, पंखे बंद हैं, आपको पसीना आ रहा है, पर आप सीट छोड़ के नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि सीट छोड़ के गए तो दूसरा आ जाएगा बेटर व्यू के लिए। एग्जैक्टली। फिर ब्रेक हो गया, इंटरवल जिसको बोलते हैं, तो आप ठंडे पॉपकॉर्न और गर्म कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए इंटरवल में बाहर जाते हो। द वॉशरूम्स आर फिल्दी, स्मेल आ रही है, खाना बेकार है, पॉपकॉर्न पता नहीं कब के बने हुए हैं, बट यू हैव नो ऑप्शन। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात, सीटें फटी हुई, हाँ ये तो ऐड करना रह गया। कई बार तो अगर रश ज्यादा बढ़े ना, स्टूल लगा देते थे, वो जो होती है ना साइड लाइन, जहाँ से आप स्टेप्स होते हैं, जहाँ से आप चढ़ के आते हो, टेंट हाउस से चेयर आती थी, टेंट हाउस से चेयर आती थी, लाल वाली जो होती है, लाल वाली। हाँ। एंड देन सडनली आपके पैर के ऊपर से कुछ निकल के गया, और आपको बाद में पता चलता है। तब तो मोबाइल फोन भी नहीं होते थे कि बैटरी से ऑन करके देख लो, फिर आगे कोई नहीं कुछ नहीं आएगा, नाल वाला कहते चुप कर, मूवी देखने दे, पता चूहा है ना। How many problems are there? PVR provided one single solution for all the problems, and you are ready to pay for it. Remember that. 250, 300, 350 आप सीट्स के लिए पे करने के लिए तैयार हैं। आप ये भी नहीं वेट करते कि आप टिकट जो है वो विंडो पे जाके ले लो, जबकि 100 रुपीज़ आपसे बुक माई शो वाला चार्ज कर रहा है पर टिकट, या फॉर द एवरी रिजर्वेशन, बट यू आर रेडी टू पे बिकॉज दे आर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग द मूवी व्यूइंग अ बेटर एक्सपीरियंस। You are seeing the value into that, and that is why you are ready to pay for it, and that is why it is not an invention, it is an innovation. ये क्या है? Touch phone. It can be iPhone, it can be Android, it can be S, right? So how it was an innovation? Again, you had so many apps to be downloaded, you had touch, तो आपको वो नहीं चाहिए, कोई टाइपिंग के लिए कुछ नहीं चाहिए नीचे, ठीक है ना। सो रातों रात ब्लैकबेरी नाम की एक कंपनी बंद हो गई, आउटडेटेड हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टच फोन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय, एज ही राइटली सेड, दैट इज एप्पल और आईफोन। ये कार पता है आपको? नैनो। व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट नैनो? डू यू थिंक सो नैनो वाज एन इनोवेशन? प्राइस एफिशिएंट, इन टर्म्स ऑफ कि टाटास ने कहा था कि मैं मोटरसाइकिल वाले को कार पे ले आऊंगा, यानी कि 1 लाख रुपए में ये कार सेल होगी। लक टकिया, एग्जैक्टली, ही वाज, दैट वाज द वर्ड व्हिच दे यूज्ड। एंड यू नो व्हाट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार वाज दैट दिस वाज द फर्स्ट एवर कार इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जहां पे प्राइस ऑफ द कार वाज फिक्स्ड बिफोर द मॉडल ऑफ द कार वाज अनाउंस्ड। जैसा सर ने कहा लक टकिया, उसने पहले कह दिया कि 1 लाख रुपए की कार होगी। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, कार बनती है, प्राइस ऐड हो जाती है, उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करते हैं और वो फाइनल आपकी सेलिंग प्राइस होती है। बट दिस वाज इनोवेशन दैट वे। ओला, इज ओला एन इनोवेशन? इज ओला इनोवेशन? कोई इसके अलावा भी कोई जवाब दे दो। यस, लास्ट बेंच, वेरी गुड। यस, इतना नहीं है सर, बिकॉज़ उबर ने ये चीज पहले इंट्रोड्यूस कर दी थी मार्केट। दैट इज नॉट द पॉइंट। मतलब हम ओला को ले या उबर लो, ओला ऑब्लिक उबर, विच मीन्स राइड शेयरिंग या राइड कॉलिंग, राइट, दैट इज अ कॉन्सेप्ट इज देयर। तो कैसे है इनोवेशन? उबर, चलो उबर ले लो, उबर कैसे इनोवेशन है? क्योंकि हम मोबाइल से कर सकते हैं, कन्वीनियंट लेट हिम या लाइक इजी टू बुक कैब्स एंड ऑल, इजी टू बुक कैब्स थ्रू मोबाइल, और मोरओवर अवेलेबिलिटी भी चेक हो जाती है, अवेलेबिलिटी चेक हो जाती है, एंड मोरओवर लाइक अगर प्राइस शेयरिंग कर सकते हैं, right? What else? You can pay in cash or you can pay through wallets and all, है ना? और very good, please sit down. हाँ जी बताइए, और कुछ फीचर गिनाते जाओ, वैल्यू एडिशन बहुत है, उसने कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी।
सबसे बड़ी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी है? क्या टैक्सीज अवेलेबल नहीं थी पहले? फिर हाउ इज इट इनोवेशन देन? हाउ इट इज आइडिया इज यूनिक देन? सर ढूंढनी मुश्किल टैक्सी के टाइम पे हमें ढूंढना पड़ता था कि वो बता जाएगा कि नहीं जाएगा। ढूंढने की क्या बात है? टैक्सी वाले का नंबर है, हमारे घरों में एक कागज होता था। मैं सुन लो मेरी बात, है ना? अब एक्चुअली सारा कुछ चेंज हो गया। एक घर में ना, हमारे घरों में ना एक कागज होता था या एक ब्रोशर कह लो, ठीक है ना? जो घर के क्लोजेस्ट जो ढाबा होता था उसका मेन्यू जो है वो हमारे पास पड़ा होता था। उसी पे टैक्सी वाले का नंबर, धोबी का नंबर, मेड का नंबर सारे लिखे होते थे। सर कई बार होता है ना कि ड्राइवर कहता है कि मैंने उस साइड नहीं जाना। अभी ओला वाला भी कह देता है वो तो। सर वो हमें ढूंढना पड़ता है ना, अगर कैंसिल होगी तो हम चलो मान लेते हैं। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? टाइम कंज्यूमिंग। व्हाट एल्स? सर हमें ये भी पता चल जाता है हमने कितना पैसा पे करना है। चलो वो मुंह से मांग लेता था, अब आपको डिजिटल में मजा आता है। चलो ठीक है। और एल्स? सबसे बड़ी एडवांटेज क्या हुई है? सबसे बड़ी वैल्यू क्या प्रोवाइड करी है ओला ने? सर चीप है, वो क्यों चीप है? टैक्सी के कंपेयर टू। क्यों चीप है? सर टैक्सी वाले ज्यादा चार्ज करते हैं। क्यों ज्यादा चार्ज करते थे? क्योंकि ये वन साइड होती है, मतलब वन वे या टू वे। ओके, वी आर कमिंग क्लोजर टू द पॉइंट। दैट इज द पॉइंट। व्हाट एल्स? मेन रीजन क्या है व्हाई ओला बिकेम सो सक्सेसफुल एंड व्हाई इट डिफीटेड द होल टैक्सी सिस्टम? व्हाई सो? चीप का आपको बता दूं, दिल्ली में एक नई टैक्सी सर्विस स्टार्ट हुई है बाय द नेम ऑफ ब्लू स्मार्ट। चेक आउट ऑन द इंटरनेट। ओला की टैक्सी अपनी वो तो है ही है सर, वो ओला वालों के लिए। हम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ब्लू स्मार्ट में क्या है कि सारी ईवीज हैं। दे आर प्रोवाइडिंग है 100% ईवी कॉन्सेप्ट। तो BYD की कारें जो 35-35 लाख रुपए की कार है, उन्होंने वो भी टैक्सी लगा रखी है। पर वो इसलिए है क्योंकि बिकॉज दे आर चार्जिंग 150 रुपीज पर किलोमीटर। एलीट यू कैन से, राइट? मेन थिंग वाज, अगर आप टैक्सी बुक करते थे तो टैक्सी वाला आपसे पूरे दिन के चार्जेस लेता था, वो पॉइंट टू पॉइंट चार्जेस नहीं लेता था। मैंने यहाँ से लाजपत नगर जाना है तो वो कहता था जी 4 घंटे लगे, मतलब मेरे को तो 4 घंटे का बुकिंग चाहिए पूरी की पूरी, तो मैं 2000 रुपये चार्ज करूँगा, 1500 चार्ज करूँगा। ओला आपसे चार्ज करता है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट कम्यूटिंग चार्जेस, कि मैंने यहाँ से लाजपत नगर जाना है तो फेयर आपका बना 150 रुपये, आपने 150 रुपये दिए एंड यू आर फ्री। That is the value addition, the biggest value which Ola has been able to generate, and because of which we consider it as an innovation over the taxi system. You are getting my point? क्या है ये? कौन सी इनोवेशन है ये? फ्रंट कैमरा इज नॉट एन इनोवेशन। फ्रंट कैमरा पहले भी आता था। What is the innovation? Very good, you are close, very good. But what else? Think of it. Sir, you can click pictures at any time. What do you mean? Any time? पहले भी any time नहीं होता सर, था। मतलब पहले जो था कि मतलब जैसे पापा बताते थे कि वो कैमरे का साइज छोटा कैमरे कर का दिया, वेरी गुड वेरी गुड, size छोटा शाबाश। हो गया, और सर पिक्चर क्वालिटी। पिक्चर क्वालिटी वो तो कैमरे की हो गया ना, हाँ। दैट कैमरा हैज इम्प्रूव्ड। व्हाट एल्स? एग्जैक्टली, सर ने कहा। मूवी भी आ गई। अब सर को चॉकलेट देनी पड़ेगी। इट इज सेल्फी। Selfie. द इनोवेशन इज नॉट द फ्रंट कैमरा, कैमरा the innovation is selfie, because of which the first front camera has become powerful than the back camera. क्या है एडवांटेज, क्या है सेल्फी में? हाँ, हम सेल्फी लेना क्यों प्रेफर करते हैं? क्या एडवांटेज है सेल्फी में जो पुरानी पिक्चर्स में नहीं थी? पहले हमें किसी को कहना पड़ता था, ओ यार यार फोटो खींच दी, फिर उसने फोटो की, और यार इन्हें तो बेकार खींची है, तो खींचनी नहीं आती, डिलीट मारी, फिर दोबारा नया बंदा ढूंढना शुरू कर दिया। Then somebody thought, why it should not be like this, that I should be able to see my picture while clicking the picture, and that was the innovation which actually changed the telecom industry, and it revolutionized the concept of a selfie. Rather, it brought the concept of selfie. अब क्या होता है, आप पिक्चर लेते हो, आप अपनी पिक्चर देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने फेस को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, जो भी कुछ करना है आप चेंज कर सकते हो। और इसका ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या फर्क पड़ा? इंडस्ट्री कैसे चेंज हो गई? इंडस्ट्री डिसरप्ट हो गई। हम एक वर्ड यूज करते हैं डिसरप्ट। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, फिर तुम्हें बताना कि सेल्फी से इंडस्ट्री कैसे चेंज हुई। जलंधर में लवली वालों ने एक
वो खोली, स्वीट शॉप तो ऑलरेडी थी, बेकरी, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? लवली बेक स्टूडियो। उन्होंने सारा कलर ना ग्रीन रखा हुआ है उसका, और साथ में उन्होंने वहां पे लिखा ही हुआ है 100% वेज, 100% वेज। उन्होंने एगलेस भी नहीं लिखा सर, एग का नाम भी नहीं लिखते, 100% वेज। लवली बेक स्टूडियो के खुलने से पहले जलंधर में आप किसी भी बेकरी में ऑर्डर प्लेस करने जाते थे तो आप उनसे पूछते होते थे, भैया वेज केक बनाते हो? वेज केक मीन्स विदाउट एग ऑब्वियसली। आज की डेट में क्या हो गया, पहले ये ट्रेंड होता था कि आप किसी के घर जाते थे बर्थडे पे तो आप पूछते होते थे कि इसमें एग तो नहीं, जो नहीं खाते वो पूछते होते थे। हमारे जैसा नहीं पूछता क्योंकि हम तो सब कुछ खा लेते पर कई लोग थे वो आगे कहते थे एग तो नहीं, और मैं तो झूठ बोलता, मैं कहा नहीं नहीं अंडा नहीं है। जबकि ऑर्डर तब क्या होता था, ऑर्डर प्लेस करते समय आपके दिमाग में रहा तो एगलेस केक ऑर्डर हो गया, नहीं हो रहा तो फिर नहीं ध्यान में आया जसूल सर ने आना है, अभी अपन वेज केक ऑर्डर करना है। नहीं सर, मैं सब कुछ खा लेता हूँ। सो द पॉइंट इज बेसिकली इज कि उसके बाद पूरी इंडस्ट्री रिवर्स हो गई। आज आप किसी शॉप पे जाते हो, बेकरी शॉप पे, आपको कहना पड़ता है कि अंडे वाला केक चाहिए, अदरवाइज दे हैव मेंशन्ड, एवरीबॉडी हैज रिटन आउटसाइड देयर बेकरी 100% वेज। दिस इज कॉल्ड डिसरप्शन। मार्केट डिसरप्ट हो गई। जैसे आईफोन के आने से सारे फोन्स टच हो गए, उसी तरीके से लवली बेक स्टूडियो ने भी मार्केट को डिसरप्ट कर दिया। सेल्फी ने क्या किया, सेल्फी ने मार्केट डिसरप्ट कर दी। इंडियन कंपनीज थी 3-4 जो मॉडल्स बना रही थी फोन्स के, पर उनकी क्या प्रॉब्लम थी कि वो इनोवेशन नहीं कर रही थी, और चाइनीज कंपनी ने इनोवेशन करी। उन्होंने सेल्फी को सपोर्ट करने के लिए फ्रंट कैमरा स्ट्रॉन्ग बना दिया, बैक कैमरा वो बना दिया, प्लस कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर डाल दिए। आज ऑलमोस्ट 78% मार्केट शेयर इंडिया में टेलीकॉम मार्केट का, टेलीकॉम का चाइनीज कंपनी के पास है। 3 कंपनियां रूल कर रही हैं। कैन यू नेम देम? वीवो, ओप्पो, चौथे पे सैमसंग है, और एप्पल जो है वो 5-6% पे है। ये तुम्हें लगता है कि इंडिया में आईफोन बहुत बिकता है, 5-6% से ऊपर नहीं है पूरी मार्केट। ओके, सो दैट इज हाउ वन स्मॉल इनोवेशन चेंज द ओवरऑल मार्केट। ओके, ये इंडिया में ही है जहां वी आर पुट